Hello students, as we all have understood the properties of factors, that there are 5 properties. I'm just repeating them so that you can recall them. That the first property to tell us about the, here you can see that the first property tells us about that 1 is a factor of every number. Second property says every number that is other than 0 is a factor of itself. That means that in every number will divide the other number. That is 1 is a factor of every number. That means that 1 can divide every number. And the next property says that every number is a factor of itself, means that every number comes in the table of itself. Then next property says every number is a factor of 0. That is, whenever any number is multiplied by 0, product will be 0. So every number will be able to have 0 as a multiple or itself as a factor. Okay. Then the next property says that a factor is always less than or equal to that number. That means that every number, if the factor is being asked of any number, then the factors will either be less than that number or will be equal to that number. And the last property tells that every number except 1 has at least 2 factors. Means only 1 is a number that has only 1 factor. Otherwise, all the other factors will have at least 2 factors, right? So today we will be understanding how to do the questions. Let's have few examples. Like here, the first example is saying, it is saying that is 4 a factor of 56? Here, what I have mentioned is you have to use a division method. Okay, we'll be doing this very thing by a division method. Here, what I have done, the question is simply as, is 4 a factor of 56? Then you will simply ask the question by yourself, from yourself, that whether 4 divides 56 completely or not. Then what you will do is that you will divide 56 by 4, and after the division method, when you will see that the remainder is 0, then you can say that yes, because 4 has divided 56 completely, or 56 is exactly divisible by 4, therefore 4 can be said to be as a factor of 56. So here we are seeing that 4 has divided 56 how many times? 14. And also you know the table of 14 or of 4. So 4 ones are 4, then 5 minus 4 gives you 1, then 6 has been dropped down, it becomes as 16, right? And then 4 fours are 16, and finally you got the remainder as 0. So what you can say, that because 56 is exactly divisible by 4, therefore 4 is a factor of 56. Coming to the next example, is 7 a factor of 63? And here I have mentioned that you have to use the multiplication method, right? You have to use the multiplication method, and by multiplication method, how we can do? And we can simply go on multiplying 1 2 3 4 5 6, those kind of numbers which you think that in those tables 63 will be coming. So first I have multiplied 1 by 63. Here you can simply see that 63 is the answer. Why I have multiplied by 1? Because from the first property we know that 1 is the factor of every number. So means 1 can be multiplied by that number so that we can get that number, because the second property tells us that every number is the factor of itself. तो यहाँ पे आपने 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और 63 से भी मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें पता है कि 63 अपने आप का फैक्टर होता ही होता है. देन कमिंग टू 3 इंटू 21, आप कहोगे कि मैम हमने 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? देन बच्चों याद कीजिए, 2
के टेबल में वही नंबर्स आते हैं जो कि इवन होते हैं, बट 63 इज़ एन ऑड नंबर, दैट्स वाई आई टुक 3 एज अ टेबल टू बी मल्टीप्लाइड। अब हमें ध्यान देना है कि 63 लाने के लिए हम 3 से क्या मल्टीप्लाई करें। तो हमेशा डिवीजन मेथड को याद रखिएगा, सबसे बेस्ट है 63 को डिवाइड कीजिए 3 से, आपको मिल जाएगा क्या 21। मीन्स आप क्या बोल सकते हैं कि 3 को हम जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको क्या मिलेगा 63। कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर 4, 4 के टेबल में भी 63 नहीं जाता, आपको टेबल पता है। 5 में भी नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं, देन 7 में जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा 7, 9 ज़ा 63, यस। तो अब आप देख रहे हैं कि इक्वल टू के बाद हर जगह 63 लिखा है और इक्वल टू के पहले 1, 3, 7, 9, 21, 63 ये 6 नंबर्स लिखे हैं, राइट। सो यू कैन सिंपली से कि 1, 3, 7, 9, 21 एंड 63 आर दी फैक्टर्स। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज 7 अ फैक्टर ऑफ 63। तो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो आपको लास्ट लाइन से समझ में आ रहा है कि 7 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 मिलेगा, ठीक है। और नहीं तो आप सिंपली अगर मल्टीप्लिकेशन मेथड भी नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है इसलिए यूज़ करेंगे, बट अगर नहीं मेंशन है तो आप क्या करेंगे, सीधे 7 का टेबल पढ़ लीजिए। और 7 का टेबल आपको याद है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ 7 के टेबल में 63 आता है, इसलिए हम बोल सकते हैं दैट येस 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 63, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें लिखा है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 72। बट देखिए इसमें ना डिवीजन मेथड मेंशन है ना मल्टीप्लिकेशन मेथड मेंशन है, आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए डिवीजन मेथड के लिए को प्रेफर किया है यहाँ पे, क्योंकि जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको हर चीज़ तुरंत तुरंत समझ में आने लगती है। सबसे पहला आपके दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहला कौन सा नंबर 1, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी से पता है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो मीन्स पहला तो उसका फैक्टर कौन सा होगा 1, फिर सेकंड 2, क्यों, क्योंकि 72 जो है वो इवन नंबर है तो वो 2 के टेबल में जाएगा ही, ठीक है। फिर क्या 3 के टेबल में आएगा, तो सबसे बेहतर होगा कि आप इसको रफ वर्क में एक बार ट्राई करके देखिए। 72 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, बचा कितना 1, ऊपर से 2 नीचे उतारा, हो गया 12, 3 4 ज़ा 12। अब देखिए आपको क्या मिला, फाइनल रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0। सो मीन्स जब आप डिवाइड करेंगे 72 को 3 से तो आपको जो यहाँ पे आपको कोशिएंट मिला था वो आपको यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपको फाइनल नंबर 24 मिल रहा है ना। तो मीन्स आप कह सकते हैं कि येस 3 भी उसका फैक्टर होगा, किसका 72 का, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जितने टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ एक बार ध्यान दीजिएगा कि आपने 3 से डिवाइड किया और जितने टाइम्स डिवाइड किया वो दोनों उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए देखिए मैंने क्या किया है कि 3 के नीचे और 24 के नीचे पूरी लाइन खींच दी है, मतलब 1 2 3 और 72 36 और 24 ये 6 नंबर्स तो फैक्टर्स होंगे ही होंगे, राइट, ठीक है। अभी तो 3 तक डिवाइड किया है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें देखिए क्या किया है कि अब 72 को 4 से डिवाइड किया। अगेन आप वही काम करेंगे, रफ वर्क में आइएगा, 4 से डिवाइड कीजिए तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 18। देन 6 से डिवाइड, 5 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 के टेबल में 5 और 0 लास्ट में आता है, तो हम 6 के टेबल में आएंगे। 6 का टेबल भी आता है आपको, या 12 का टेबल आता है, तो 6 से जब डिवाइड किया तो देखा 12 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। देन 8 से डिवाइड किया तो 9 टाइम्स जा रहा है। अब देखिए मैंने एक बार 9 को फिर से रिपीट किया है, 9 से डिवाइड किया है तो 8 बार 72 पूरा डिवाइड हो गया है। तो अब आपको देखना क्या है, आप असेंडिंग ऑर्डर में ही फैक्टर्स को लिखेंगे। मैंने सबसे पहले आपको फैक्टर्स के नीचे लिखवाया था दैट ऑलवेज राइट फैक्टर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और कभी भी आपसे कोई भी फैक्टर छूटेगा नहीं, राइट। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फैक्टर्स ऑफ 72। फैक्टर्स ऑफ 72 में सबसे पहले मैंने 1 2 3 से डिवाइड किया था, देन 4 से डिवाइड किया, देन 6 से, देन 8 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने जब 8 से डिवाइड किया है तो आपको उसका अगला फैक्टर 9 मिल गया है ना, तो मैंने यहाँ पे 9 लिखा,
उसके बाद देखिए मैं क्या कर रही हूँ, 8 के बाद मैंने 9 लिखा है, राइट। और 9 के बाद मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दी हूँ, मीन्स मैंने 9 के बाद 12 लिखा, 12 के बाद 18 लिखा, देन 18 के बाद मेरा 3 से जब डिवाइड किया था तो 24 आया था, 2 से डिवाइड किया तो 36 आया था, और 1 से डिवाइड किया तो 72 आया था, राइट। तो मीन्स आप जब डिवीजन मेथड में को यूज़ करेंगे तो आप जिस जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो तो आपको फैक्टर्स मिलेंगे ही, और जितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है मीन्स जो क्वोशिएंट आ रहा है वो भी आपको फैक्टर्स ऑटोमेटिकली पता चलते जाएंगे, राइट। तो इसलिए डिवीजन मेथड इज़ मोस्ट हेल्पफुल मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स, ठीक है। ये वाला काम बच्चों आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, ठीक। ये दो टोटल आपके सामने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, इन तीनों एग्जाम्पल्स को आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे। नहीं समझ आया है तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कीजिए, फिर से चलाइए, आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। एंड देन यू विल बी डूइंग एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 क्वेश्चन तक आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग।